Assalamu alaikum and welcome to lecture number 32, which is the last lecture for your course Introduction to Business. Before we end this course and before I give you a recap of the entire course, there's one more chapter that we need to do. That's chapter number 14. For this particular chapter, we're not covering the entire chapter, but we're just going to discuss a few concepts which are very important in your understanding of how goods are produced and your understanding as to how operations of an organizations are managed. That is chapter number 14, which I'm just talking about, and chapter number 14 is about producing goods and services. Now, the very first thing that we will do with reference to chapter number 14 is first tell you what do I mean when I say production management, or what do I mean when I say producing goods and services. Whenever we are producing goods and I basically mean production, and whenever we are talking of services, I basically mean operations. So a lot of time the terms production and operations are used interchangeably, and a lot of time production is used for goods and operations is used for services. The processes, the meaning of the terms, the wordings would more or less mean the same. The only difference is if it is a good, it's going to be production, and if it is going to be a service, it's going to be an operation. Now, the very first thing that we will talk about is a definition of operations and productions. Again, if you're talking what production is, or if you would ask me to define what production is with reference to the production of goods. That is how goods are produced in an organization. But if we elaborate the same definition further, then प्रोडक्शन वुड मीन कि किस तरीके से हम रॉ मटेरियल्स को एक्वायर करते हैं और किस तरीके से हम किन प्रोसेसेस को, किस तरीके से मशीनरी को, मैन पावर को, ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके हम उन रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड्स में या फिनिश प्रोडक्ट्स में. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन. और जब आप इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करते हैं कि जी किस तरीके से रॉ मटेरियल आएगा, उसको आगे किस प्रोसेस में भेजना है, वहाँ से प्रोसेस कौन लोग मैनेज करेंगे, किस तरीके से आपके पास आपकी प्रोडक्ट्स आएगी, उसको आप production management कहते हैं. The very same thing with regards to the operations of services is called as operations. क्या आप क्योंकि स्पेशली अगर हम सर्विस की बात करें, सर्विस में आप कोई चीज़ फिजिकल चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कोई टैंजिबल चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहे. इट्स सर्विस इज बेसिकली अ प्रोसेस दैट यू फॉलो, राइट. सो जब आप सर्विस को देखते हैं कि किस तरीके से वो सर्विस डिलीवर हो रही है, क्या सर्विस या जो सर्विस डिलीवर हो रही है, इज इट मीटिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल, जो सर्विस है वो उसको जो डिलीवर कर रहा है वो कैसा कर रहा है, क्या वो सर्विस कस्टमाइज्ड है या नहीं है. दैट इज व्हाट ऑपरेशंस आर. एंड अगेन व्हेन यू आर मैनेजिंग दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ सर्विस, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट. Now, you need to understand that in today's time, in the year 2012, operations management and production management are two very, very important concepts which can make a distinction between a company being successful and a company being unsuccessful. Now, why is that? The reason for this is, or the reason for the rise in importance of production and operations management is that the whole working of an organization has literally become a science now. Things cannot be done haphazardly. Processes cannot just happen without any rhyme or reason. There's certain way processes should happen so that your efficiency and your effectiveness of the processes increase, because once your entire process of production or operation is effective and efficient, only then you will be able to reduce costs, only then you will be able to make profitability, only then you will be able to be a profitable and a successful and a growing company. So that is one of the reasons that your production and operations management is one of the most important thing. Another reason for the importance of these two concepts is that your environment and your situation that surrounds a particular business is continuously changing and is very fast paced. Now, if there is no process for production of goods and for operations of services, if there's not going to be a process for services and goods, then what will happen is that any company will not be able to change itself to
to the changing scenarios in the external environment. And again, when that happens, when the company is unable to cope with the changes in the environment, and that would automatically mean that the company is not going to be a profitable company. Again, another reason for the importance of operations and production is, or for the growth of operations and production management, is that organizations and companies more and more are going for outsourcing. Outsourcing basically means just because they feel that a company feels that they're going to reduce their cost by producing in another country, they go and establish their production facilities in another country. For example, we've sort of discussed this example a lot of times before as well. Everything that we wear, or at least 80% of the things that we use in our daily lives, are made in China. Why is it every company, every organization goes to China for production? Simply inexpensive labor. And labor is again one of the very important factors of your production management. So because of the rise of outsourcing, because of the rise of organizations going to countries which offer them resources at lower prices, there's a growth in production and operations management processes, whereby an organization would like to streamline its processes so that no hiccups occur and the company can become a profitable company. Again, in comparison to production and operations growth, initially lots of years back, what used to happen was that there was more production and less operations. However, since the last 10-20 years, more and more countries are moving towards service-oriented industry, as a result of which there's a huge rise, or there's a huge shift in your operations management. Now more and more countries are going towards operations management and less towards production management. So that is another reason why organizations and business concerns are studying the concepts of production and operations management. And then again, your technology and internet has sort of helped in as well, और उसकी भी वजह से आपका जो production operation processes है वो improve हुए हैं, वो बेहतर हुए हैं, वो updated हैं. आपका both production operations के जो processes होते हैं वो नई technology use करते हैं, बेहतर तरीके से चीज़ें perform होती हैं, as a result of it जो आपकी good है या जो आपकी service है वो ज़्यादा effectively आपके customers तक पहुँचती है. So basically जो ये हमने आपको 4-5 reasons यहाँ पर समझाए या बताने की कोशिश की, it is because of these particular reasons के आज के ज़माने में in the year 2012 there's a huge importance is given to your operations and production. Again, last thing is quality planning as well. Quality planning को हमने इन सब चीज़ों से इसलिए अलग रखा because quality planning आपकी तब आएगी जब आपकी service और goods जो है वो manufacture हो जाएगी. But again, quality planning जो है वो production and operations का बहुत important हिस्सा है, because at the end of your production processes and at the end of your operation processes, you would want your good and you would want your service to be of the right quality so that your customer gets satisfied and so that your customer gets happy. Now, whenever we're talking of either production or services, आपका ultimate benefit क्या है? आप कोई good क्यों produce करते हैं या आप कोई service क्यों produce करते हैं? The ultimate reason or the ultimate objective is कि आपने customer को खुश रखना है, आपने customer को satisfied रखना है. Isn't that it, right? कि आप कोई भी good या कोई भी service इसीलिए produce करते हैं कि आप customer को benefits provide कर सकें और आप customer की needs and wants को fulfill कर सकें. Now, with reference to benefits provided and with reference to the fulfillment of needs and wants, एक बहुत important चीज़ होती है जो कि जिसको हम कहते हैं utility. And every product, irrespective कि वो good है या वो service है, हर product की utility होती है. Utility क्या है? Product's ability to satisfy want. कि जी product के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो कस्टमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है. अगेन, हम ये बात पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हैं, हम यूटिलिटीज़ को आपके मार्केटिंग के सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं. बेसिकली किसी भी जो प्रोडक्ट होती है उसकी 4 यूटिलिटीज़ होती हैं: टाइम, प्लेस, पोजेशन एंड फॉर्म. टाइम इज़ दैट यू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट टाइम. प्लेस इज़ दैट यू मेक योर प्रोडक्ट अवेलेबल एट द राइट प्लेस. पोजेशन इज़ विद रेफरेंस टू दैट satisfaction that a person gets once he or she owns a particular product. And form is basically जहाँ पर
आप प्रोडक्ट के एक्चुअल फीचर्स बनाकर उसको एक पर्टिकुलर शेप में लेकर आते हो। नाउ विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट और विद रेफरेंस टू प्रोडक्शन, आपकी दो यूटिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटीज तो सारी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये चारों नहीं होंगी एक साथ तो आपका कस्टमर कभी से भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन प्रोडक्शन के रेफरेंस से आपकी टाइम यूटिलिटी और आपकी फॉर्म यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर्म यूटिलिटी इसलिए बिकॉज आप प्रोडक्शन प्रोसेसेस को यूज़ करके आप प्रोडक्ट को एक्चुअल शेप देते हैं, आप गुड्स को एक्चुअल उनको एक शक्ल देते हैं कि जी ये गुड्स जो है ये ऐसी होनी चाहिए। सिमिलरली जब वो चीज़ बन जाती है, जब उसमें उसके फीचर्स हो जाते हैं, जब वो एक टैंजिबल शेप में आ जाती है, तो आप उसको एक राइट टाइम पर उसको अपने कस्टमर्स के पास डिलीवर कर देते हैं। अगर प्रोडक्शन मैनेजमेंट में या प्रोडक्शन प्रोसेसेस में टाइम यूटिलिटी और फॉर्म यूटिलिटी नहीं होगी, उस केस में आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी सही नहीं होंगी, उनकी सेल्स भी सही नहीं होंगी, विच इन टर्न्स वुड ऑटोमेटिकली अफेक्ट द profitability of a company as well. Now, चाहे मैं ऑपरेशंस की बात करूँ या मैं प्रोडक्शन की बात करूँ, आई बेसिकली मीन द सेम थिंग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन दैट प्रोडक्शन विल बी फॉर गुड्स एंड ऑपरेशंस विल बी फॉर सर्विसेज। सो इस पूरे डिस्कशन में जो कि हम आपके साथ करेंगे, हम प्रोडक्शन और ऑपरेशंस को इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, ठीक हो गया? सो डोंट गेट कन्फ्यूज इफ आई से ऑपरेशंस और इफ आई से प्रोडक्शन। मैं प्रोडक्शन भी कह सकती हूँ, मैं ऑपरेशंस भी कह सकती हूँ। जहाँ पर मुझे डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि ये चीज़ स्पेसिफिकली सर्विसेज के लिए है और ये चीज स्पेसिफिकली गुड्स के लिए है, तो वहां पर मैं आपको डिस्टिंक्शन करके ही बताऊंगी। बट अदरवाइज फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ दिस लेक्चर, द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस को हम एक जैसा ही कंसिडर करेंगे। ओके, सो अब हमें ये समझ में आ गया कि ऑपरेशंस क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन या ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या होती है। Management of your operations and of your production basically means a systematic direction, control of processes that transform resources into finished goods, thus creating value. So production management basically ये है कि आप किस तरीके से अपनी resources को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करते हैं, एंड इन द प्रोसेस जब आप उनको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करें, आप किस तरीके से कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करें इन टर्म्स ऑफ टाइम यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्लेस यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ पोजेशन यूटिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। सो द प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोसेसेस के किस तरीके से रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम यू नीड टू कीप इन माइंड कि रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स में किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। इट्स नॉट दैट आई से abracadabra and the raw material changes into a finished good. It's a whole process that is supposed to be followed. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 and the finished good is made. So production management में ये भी होता है कि आप किस तरीके से उन सब steps को, किस तरीके से उन सब processes को सही direction देते हैं और किस तरीके से उन्हें सही तरीके से control करते हैं। Direction क्यों देना ज़रूरी है? Direction इसलिए देना ज़रूरी है because अगर उन steps में direction नहीं होगी, if for example if step 2 comes before step 1, तब तो चीज़ नहीं बनेगी ना, जब तो प्रॉब्लम होगी, तब तो कंफ्यूजन अराइज होगी। सो स्टेप 1, स्टेप 2 इसी ऑर्डर में जाने चाहिए। सो आप एक सब प्रोसेसेस को, सब सिस्टम्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं, सिंगल डायरेक्शन देते हैं, ताकि वो उसी डायरेक्शन में मूव करके आपकी प्रोडक्ट बनाए। सिमिलरली आपको कंट्रोल भी देखना पड़ता है कि जी हमने प्लान कितना किया था, हो क्या रहा है, जो हमने प्लान किया था क्या वही हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। सो बेसिकली जब भी हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करेंगे, इट इज़ बेसिकली अ सिस्टमैटिक डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस दैट ट्रांसफॉर्म योर रॉ मटेरियल इनटू योर फिनिश्ड गुड्स, thus creating value for the customer. Now this is the definition of operations management. Next is कि आपके operations managers या production managers कौन होते हैं? They are the people, they are the individuals who ensure processes create value and benefits. एक production manager का काम ये होगा कि जितने भी processes हैं which are involved in actually producing a product happen efficiently. जो बंदा है वो सही तरीके से काम कर रहा हो, सही टाइम पर काम कर रहा हो, सही रॉ मटेरियल को यूज़ करके काम करो, ताकि जो आपकी फिनिश्ड गुड बने वो सही बने और वो एक अच्छी क्वालिटी की बने। सो बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर होता है उसका प्राइमरी पर्पस जो होता है वो सिर्फ यही होता है कि द पर्सन इंश्योर्स प्रोसेसेस क्रिएट वैल्यू एंड बेनिफिट्स, बिकॉज
कस्टमर को वैल्यू एंड बेनिफिट्स तभी मिलेंगे जब प्रोडक्ट अच्छी होगी। प्रोडक्ट अच्छी कैसे होगी? जब सारे प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट वो सही तरीके से होंगे। और सही तरीके का मतलब ये सिर्फ नहीं कि उनको परफॉर्म सही तरीके से किया जाएगा। सही तरीका का मतलब ये भी है कि रॉ मटेरियल भी सही आए, जो वर्कर्स जो चीज़ बना रहे हैं वो भी स्किल्ड वर्कर्स हों, उनको नॉलेज हो कि कैसी क्या चीज़ हो रही है। सो पूरा प्रोसेस A to Z को एक ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो सही से देखता है, सो दैट द ऑपरेशन मैनेजर कैन क्रिएट वैल्यू एंड कैन क्रिएट बेनिफिट्स फॉर द कस्टमर। Now, किस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, दैट इज डिपिक्टेड इन द फिगर दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि आपका जो ऑपरेशन मैनेजर होता है वो प्लान ऑर्गेनाइज करता है, स्केजुलिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, प्लान करता है कि हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, कितना रॉ मटेरियल आएगा, कितने आवर्स की वर्कर्स की शिफ्ट लगेंगी, कितने हमें वर्कर्स चाहिए, किस किस्म की हमें मशीनरी चाहिए, इन सब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है। ये वर्कर यहाँ काम करेगा, ये वर्कर यहाँ काम करेगा, शिफ्ट इतनी लंबी होंगी। स्केजुलिंग बनती है कि एक बंदे ने इतनी लंबी शिफ्ट में काम करना है और इतनी प्रोडक्ट्स बनानी है। और फाइनली कंट्रोलिंग होती है टू सी कि जो प्लान्ड और प्लान्स और परफॉर्मेंस में कितनी डिविएशन है भी या नहीं। ऑपरेशन मैनेजर जो है वो ओवरसी करता है ये तीनों प्रोसेसेस। ये तीनों प्रोसेसेस क्या है? इनपुट्स इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, कस्टमर एंड इंफॉर्मेशन। इन सारे इनपुट्स को आप अपनी प्रोसेसेस या अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी या अपनी ऑपरेशन फैसिलिटीज में डालते हो और इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी या जो ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है आपका, इसके अंदर से आपकी आउटपुट निकलती है, चाहे वो गुड की फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विस की फॉर्म में हो। बट जनरली आपका एक इनपुट होती है, बीच में आपका एक प्रोसेस होता है, एंड में आपकी एक आउटपुट होती है। इनपुट आप प्रोसेस में डालते हो और आउटपुट आप प्रोसेस से निकाल देते हो। एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज बेसिकली मैनेज्ड बाय योर ऑपरेशन मैनेजर, हु बेसिकली इंश्योर्स कि ये पूरा प्रोसेस सही तरीके से हो, सो दैट कि जो आउटपुट निकली है वो आपके कस्टमर्स को बेनिफिट कर सके और वैल्यू प्रोवाइड कर सके। नाउ जब हम गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं या प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप की होती है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। गुड्स की होगी तो प्रोडक्शन कहलाएगी और सर्विसेज की होगी तो ऑपरेशन कहलाएगी। जब हम मैन्युफैक्चरिंग के रेफरेंस से बात करेंगे तो गुड्स के प्रोसेसेस अलग होंगे और सर्विसेज के प्रोसेसेस अलग होंगे। गुड्स जो हैं वो एक तरीके से मैन्युफैक्चर होंगी और सर्विसेज जो हैं वो एक तरीके से मैन्युफैक्चर होंगी। नाउ बिफोर वी गो इनटू सर्विस प्रोसेसेस, फर्स्ट अप वी गोइंग टू डिस्कस द गुड्स प्रोसेसेस। गुड्स प्रोसेसेस बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। सो दीज आर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस दैट यू हैव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस दैट यू हैव for manufacturing of goods. Analytic process क्या होता है? Which breaks down resources into components. So अगर हम K&N की बात करें जो आपके frozen chicken जो provide करते हैं, what they do is कि वो whole chicken जिंदा मुर्गियाँ लेकर आते हैं, उनको ज़बा करते हैं और उनको काट के उनके different components बनाकर आगे further रखवा देते हैं। वो components क्या होते हैं कि जी आपको wings अलग मिल सकती हैं, legs अलग मिल सकती हैं, neck अलग मिल सकती है, आपको जो only meat as in boneless अलग मिल सकता है। So analytic process basically is कि which breaks down resources, which in our case would be कि जो आपकी live chicken है that would be the resource, और उसको ज़बा करके और उसके pieces करके उसको different components जो हैं वो बना दिए जाते हैं। So that is what we call as analytic processes. And analytic processes generally would be used जहाँ पर आप जो आपके analytic process के end में जो आपके पास चीज़ आएगी आप उसको use करके कोई और finish good बनाते हैं, right? So that is what is an analytic processes. Next type of good processes is something called as a synthetic process. Synthetic process basically is combines raw material to make finished goods. कि जब आप K&N से मुर्गी खरीदते हैं और या कोई रेस्टोरेंट जो है वो K&N से मुर्गी खरीदता है और उस मुर्गी को पकाकर आपके लिए चिकन कढ़ाई बनाता है, that becomes a synthetic process whereby you're combining raw material, you're using raw material to make a finished good. So उसको आप synthetic processes कहते हैं। So जब हम गुड्स प्रोसेसेस की बात करेंगे तो दो प्रोसेसेस उसमें शामिल होते हैं, एक एनालिटिक और दूसरा सिंथेटिक।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज कि आपके सर्विस प्रोसेसेस क्या होते हैं। सर्विस प्रोसेसेस को या सर्विस को जब आप डिस्टिंग्विश करते हैं इनटू प्रोसेसेस, दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट। कि आप सर्विसेज की जो डिस्टिंग्विशिंग करते हैं कि जी सर्विस प्रोसेसेस किस किस बेसिस पर होंगे, वो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर क्या होता है कि आप कस्टमर के साथ कितना इन कॉन्टैक्ट आते हैं। यू वुड नोटिस कि देयर आर सर्टेन सर्विसेज विच आर जहाँ पर कस्टमर के बगैर चीज़ हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल एक बार्बर शॉप है, बार्बर जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। क्या बार्बर आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है कि कस्टमर ही ना बैठा हो? अगर कस्टमर कुर्सी पर नहीं बैठा होगा तो क्या बार्बर किसके बाल काट सकता है? किसी के भी नहीं। सो जो बार्बर है या जो बार्बर की सर्विस है उसमें जो कस्टमर कॉन्टैक्ट का एक्सटेंट है दैट्स वेरी हाई। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर सर्विसेज जहाँ पे कस्टमर कॉन्टैक्ट का जो एक्सटेंट होता है वो इतना हाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यू गो टू अ बैंक और आप बैंक जाकर अपना चेक बैंक वालों को दे देते हैं। अब चेक जो आपने बैंक वालों को दिया है वो किसी और बैंक का, उसके बाद आप घर चले जाते हैं, बैंक अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग करते रहते हैं, उसको दूसरे बैंक के पास भेजते हैं और 2-3 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इस पूरी सर्विस में क्या हुआ जो कि बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि कस्टमर के साथ जो कॉन्टैक्ट का एक्सटेंट है वो बहुत कम है। सो जब आप सर्विसेज को या सर्विस प्रोसेसेस को कैरेक्टराइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तो आप इस बेसिस पर करते हैं कि आप कस्टमर के साथ कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर्विसेज प्रोसेसेस 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक हाई कॉन्टैक्ट एंड एक लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज। हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज और 2 सर्विसेज जहाँ पर आपका कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बार्बर की एग्जांपल दी, आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, दैट्स अगेन अ हाई कॉन्टैक्ट सर्विस। अगर आप बस सर्विस यूज करते हैं, दैट्स अगेन अ हाई कॉन्टैक्ट सर्विस। ऑन द अदर हैंड लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज आर जहां पर आपका या ऑर्गेनाइजेशन का कस्टमर के साथ जो कांटेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक जाकर, जो मैंने अभी आपको दी, अगर आप बैंक जाते हैं और बैंक जाकर अपना चेक बैंक को देते हैं तो दैट बिकम्स क्योंकि आपने तो चेक प्रेजेंट कर दिया, उसके बाद बैंक अपने आप उसको प्रोसेस करता है और उसमें आपका काउंटर पर खड़े रहना ज़रूरी नहीं है या आपका बैंक ऑफिशियल्स के साथ बैठना ज़रूरी नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ लो कॉन्टैक्ट सर्विस। सो आप गुड्स को एनालिटिक और सिंथेटिक के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं और सर्विसेज के प्रोसेसेस को हाई कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट की बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं। Now what we're going to do is कि जी हम मुस्तकिल बात करें प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट की, हम आपके लिए ये भी और आसानी कर देते हैं कि हम आपको डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि जी गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक सिंगल वर्ड से क्यों नहीं डिफाइन कर सकते। सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चरिंग विद रेफरेंस टू मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली इज कि जी गुड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एंड सर्विसेज जो होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। आप जाते हैं, आपने कपड़ा खरीदना है तो आप कपड़ा जो है दैट बिकम्स अ गुड, राइट। एंड उस कपड़े को खरीदने, अगर आप कपड़ा खरीदते हैं तो उस कपड़े को बनाने के लिए कपड़ा प्रोड्यूस होगा। आप कॉटन लेंगे, आप मशीनरी खरीदेंगे, आप थ्रेड बनाएंगे, आप डाई करेंगे, आप वीव करेंगे और आपके पास एक कपड़ा आएगा। सो एक पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है जिसको आप यूज करके गुड को प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द अदर हैंड सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक वहाँ पर बंदा आपको चेक करता है, आपको देखता है, आपके सिम्टम्स पूछता है और आपको दवाई दे देता है। आप बार्बर के पास जाते हैं, एक बार्बर होता है, वो कैंची और आपकी कूम लेकर आपके बाल काटता है। आप रेलवे पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जो रेलवे इंजन है वो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है या वो आपको एक परफॉर्मेंस दे रहा होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर चला जाता है। सो वन ऑफ द वेरी फर्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज या बिटवीन सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग इज कि गुड्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और सर्विसेज जो होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। द second difference between goods and services is in the process and outcome. मतलब कि जो गुड्स होती हैं वो फोकस करती हैं आउटकम पर कि जी आपका एंड रिजल्ट क्या है, एंड में आपको क्या चीज़ मिली, आपको एंड में गाड़ी मिली, अच्छी मिली, कपड़ा मिला, अच्छा मिला, जूता मिला, अच्छा नहीं मिला, एंड रिजल्ट क्या है, आपको आखिर में क्या मिला। ऑन द अदर हैंड सर्विसेज फोकस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एज वेल एज द आउटकम। सर्विसेज में आउटकम तो इम्पोर्टेंट होती है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जी आप जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स बर्गर खाने, अगर जिस प्रोसेस के थ्रू
होते हुए आपके लिए बर्गर तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एंड रिजल्ट है, लेकिन जिस प्रोसेस से वो बर्गर गुजरा है सो दैट बर्गर कैन बी मेड, अगर वो प्रोसेस सही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका आउटकम भी सही नहीं होगा। सो सर्विसेज के केस में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जो कि सर्विसेज को स्टेज बाय स्टेज बेहतर से बेहतर बनाता जाता है, अगर वो सही नहीं होगा तो आपका आउटकम भी सही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बार्बर शॉप की बात कर लेते हैं। अगर जिस तरीके से बार्बर आपके बाल काट रहा है, अगर उसे सही कंघी, सही सिजर, सही तरीके से बाल आपके नहीं काटे तो आपका हेयर कट अच्छा नहीं होगा। सो आउटकम तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन साथ वो इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी अच्छा नहीं है। गुड्स के केस में आप सिर्फ आउटपुट को फोकस करते हो, सर्विसेज के केस में आप पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, किस तरीके से आप चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो प्रोसेस भी काउंट करेगा और आपकी जो एंड रिजल्ट है वो भी काउंट करेगा। Next distinction between your service and your goods is that service के certain characteristics होते हैं जो कि good में नहीं होते। For example, सबसे पहली distinction जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, one of the very first difference between a service and a good is that a service is intangible. On the other hand, a good is tangible. So service is something जिसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, जिसको आपके सामने नहीं होती, which you cannot hold in your hand. So that is what we mean when we say intangibility. आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप उस सर्विस को हाथ में नहीं पकड़ सकते, घर लेकर नहीं आ सकते। आप हेयर कट के लिए जाते हैं, आप उस सर्विस को हाथ में नहीं पकड़ सकते। सो दैट इज व्हाट वी कॉल व्हेन वी से कि जी सर्विसेज जो होती हैं वो इंटैंजिबल होती हैं। नेक्स्ट इज सर्विस इज जनरली कस्टमाइज्ड। अगर हर डॉक्टर एक ही तरह की दवाई सब मरीजों को दे दे, पेशेंट्स को दे दे, तो फ़ायदा क्या? डॉक्टर का काम ही ये होता है कि वो पेशेंट से पूछता है, उसके सिम्टम्स पता करता है, उसको चेक करता है और फिर उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है। सो सर्विस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ कस्टमाइज्ड सर्विस विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स जो कि उस सर्विस को यूज़ करें। एंड फाइनली सर्विस इज समथिंग विच कैन नॉट बी स्टोर्ड। ठीक हो गया? आप बार्बर की सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, आप उसको जाकर फ्रिज में या स्टोर रूम में रख नहीं सकते कि जी मैं 2 दिन के बाद बार्बर की सर्विसेज यूज़ करूँगा। सिमिलरली आप एक डॉक्टर की सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जी अभी सुबह नहीं, मैं घर ले जाकर डॉक्टर की सर्विस को स्टोर कर लूँगा, शाम को इस्तेमाल करूँगा। सो विद रेफरेंस टू सर्विसेज के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो इंटैंजिबल होती हैं, वो कस्टमाइज्ड होती हैं और वो स्टोर नहीं की जा सकती। The fourth thing that happens, or the fourth thing which distinguishes a service from a good is that the customer services link. कि the customer is part of a service. अगर बार्बर की सीट पर कस्टमर नहीं बैठेगा तो बार्बर किसको हेयर कट देगा? अगर डॉक्टर के आगे पेशेंट नहीं बैठेगा तो डॉक्टर किसको चेक करेगा? अगर बस में कस्टमर नहीं बैठेगा तो बस सर्विस किसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं? सो जो सर्विस है उसको सक्सेसफुली परफॉर्म करने में या एक सर्विस को सक्सेसफुली डिलीवर करने में कस्टमर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अ सर्विस कैन नॉट हैपन विदाउट अ कस्टमर। गुड्स के केस में ये नहीं होता। गुड्स तो ये कि आपने गुड्स बनाई, रख ली, स्टोर कर ली, स्टोर करके आप कस्टमर का वेट करें, कोई इशू नहीं। गुड्स की पूरे मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स की प्रोडक्शन में कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कस्टमर की ज़रूरत ही नहीं है। कस्टमर की ज़रूरत इन टर्म्स ऑफ गुड तब आती है जब आपकी गुड बन चुकी होती है एंड इट इज़ रेडी फॉर सेल, फिर आप कस्टमर को एडवर्टाइज करते हो कि जी गुड बन गई, आकर ख़रीद लो। सर्विसेज के केस में जब आप सर्विसेज को परफॉर्म कर रहे होते हैं या सर्विसेज को डिलीवर कर रहे होते हैं, अ सर्विस कैन नॉट बी डिलीवर्ड विदाउट अ कस्टमर। सो अ कस्टमर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सर्विस। नेक्स्ट थिंग इज अगेन इन टर्म्स ऑफ, अगर हम ये कस्टमर सर्विसेज लिंक की बात करें तो जो आपका ई कॉमर्स या इंटरनेट बिजनेस की आप बात करते हैं या ई बिजनेस की आप बात करते हैं तो उसमें भी आपका कस्टमर की प्रेजेंस होती है, बिकॉज उसमें बेशक फिजिकल प्रेजेंस तो नहीं होती, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ इंटरनेट आपकी कस्टमर की एक वर्चुअल प्रेजेंस होती है कि कस्टमर एग्जिस्ट समवेयर देयर, उसकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी लेकिन वर्चुअल प्रेजेंस होगी। सो अगेन सर्विसेज की डिलीवरी में कस्टमर बिकम्स अ वेरी वेरी important part. If there is no customer, then the service cannot be delivered. Next thing is that you need to keep in mind e-commerce or virtual presence की हमने बात कर ली। Service quality consideration. Quality of work and quality of service are two different things. For example, quality of work, आपने गाड़ी रिपेयर कराई,
गाड़ी तो बड़ी अच्छी रिपेयर होगी, लेकिन अगर उस रिपेयरमैन ने आपको रात के 12 बजे बुलाया कि जी आकर अपनी गाड़ी पिक कर लें, तो आप क्वालिटी ऑफ वर्क से तो शायद खुश हों, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस से शायद खुश ना हों। ठीक हो गया? सो इन केस ऑफ सर्विस की अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस आर टू वेरी डिफरेंट थिंग। गुड्स में क्या होता है, उसमें सिर्फ क्वालिटी ऑफ वर्क ही मैटर करती है। गुड या अच्छी होगी या बुरी होगी, या अच्छी क्वालिटी की होगी या बुरी क्वालिटी की होगी। सर्विस के केस में क्वालिटी ऑफ वर्क तो मैटर करेगी, प्लस आपका जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, कि इफ यू हैव पीपल क्लीनिंग इन योर हाउस, अगर आपके घर में कोई सफाई वाला आता है, वो सफाई तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन एक एटीट्यूड के साथ कर रहा है, हर वक्त गुस्से में रहता है, जवाब दे देता है, इस केस में उस सर्विस का जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो तो बड़ा अच्छा है कि सफाई तो बहुत अच्छी हो रही है, हर जगह बहुत साफ सुथरे से सफाई होती है, लेकिन जो आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस है कि जी वो जवाब देती है, आपका जो सफाई वाला है वो जवाब देता है, या जो आपकी सफाई वाला है वो बदतमीजी करता है या हर वक्त गुस्से में रहता है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो आपकी खराब हो सकती है। सो इट्स नॉट, सो जब भी आप सर्विस की बात करेंगे तो आप क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करेंगे। जरूरी नहीं कि दोनों अच्छी या दोनों बुरी हों। देयर कैन बी इंसिडेंट्स की अब हमने अभी आपके साथ बात की, जहाँ पे आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा हो सकता है और क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो अच्छी नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी हो, बंदा आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हो, बहुत आपको समझा रहा हो, इज़ वेरी कर्टियस, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो अच्छी ना हो। सो सर्विस के केस में आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस बोथ मैटर। सो ये जो 3-4 पॉइंट्स हमें डिस्कस किए, दे वर विद रेफरेंस टू कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ क्वालिटीज हमने सर्विसेज के आपको बताएंगे, सर्विसेज में ये होता है जो कि गुड में नहीं होता, और कुछ चीज़ें हमने आपको गुड्स की बताएंगे, गुड्स में ये होता है जो कि सर्विसेज में नहीं होता। सो जब भी आपको डिस्टिंक्शन की बात है कि जी हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड एंड अ सर्विस, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड एंड सर्विस यूजिंग द पॉइंट्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विद रेफरेंस टू ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज ऑपरेशन प्लानिंग। आप किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को प्लान करते हैं। एंड व्हेन आई से ऑपरेशंस, आई वुड ऑटोमेटिकली मीन के व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्टिंग योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स सो दैट द फिनिश गुड एड्स वैल्यू टू द कस्टमर। सो दैट इज व्हाट ऑपरेशंस इज। नाउ ऑपरेशन प्लानिंग में आपके वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, या आप वेरियस चीज़ों के बारे में ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं। उसमें सबसे पहले आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हो। कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है? कैपेसिटी इज कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है ना। ऑपरेशन प्लानिंग जो होती है, चाहे वो गुड की हो या सर्विस की हो, मोर और लेस इट्स गोइंग टू फॉलो द सेम प्रोसेसेस। ओके, सो सबसे पहले आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हो कि जो हमारी फैक्ट्री है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। तो जब आप कैपेसिटी प्लानिंग की बात करोगे तो आप उसमें भी मल्टीपल चीज़ें देखोगे। आप ये देखोगे आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, आप ये देखोगे कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कितनी है, आप ये देखोगे कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं। बिकॉज आप कैपेसिटी प्लानिंग तभी कर सकते हो जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो, रॉ मटेरियल भी हो, फैक्ट्री भी हो, मशीनरी भी हो। अगर इनमें से कोई चीज़ भी मिसिंग होगी तो आप अच्छे तरीके से कैपेसिटी प्लानिंग नहीं कर सकते। ना कैपेसिटी प्लानिंग आप गुड्स के लिए भी करते हैं और कैपेसिटी प्लानिंग आप फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी करते हैं। ना जब आप गुड्स के लिए कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे होते हैं, सो कैपेसिटी का अगेन मतलब ये होता है कि आप कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करोगे, नंबर्स, राइट। सो जब आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे होते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, व्हाट यू डू इज दैट यू टेंड टू प्रोड्यूस अबव देन द डिमांड। अगर एक डिमांड 500 यूनिट्स की है तो आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हो 600 यूनिट्स की। आप ओवर प्रोड्यूस करते हो गुड को। क्यों ओवर प्रोड्यूस करते हो? बिकॉज अगर आप अंडर प्रोड्यूस करोगे, डिमांड 500 की है और आपने सिर्फ लेट्स से 450 प्रोड्यूस की, उस केस में क्या होगा, या अगर डिमांड 500 की आपने एग्जैक्टली 500 प्रोड्यूस की, उस केस में क्या होगा कि अगर फर्ज करें फॉर बिकॉज ऑफ एनी एनवायरमेंटल फैक्टर अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो आपके पास गुड्स नहीं होंगी, अवेलेबल ही नहीं होंगी, स्टोर में भी नहीं होंगी, इन्वेंट्री में भी अवेलेबल नहीं होंगी जिनको आप सेल ऑफ करके कस्टमर को दे सकें। सो व्हेनेवर योर कैपेसिटी प्लानिंग फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, यू ऑलवेज ओवर प्रोड्यूस। अगर डिमांड 500 की है आप 600 प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट टू बी
ऑन द सेफ साइड कि भाई अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो हम उस डिमांड को फुलफिल कर सकेंगे, अगर डिमांड इंक्रीज नहीं भी हुई तो कोई मसला नहीं है, वो इन्वेंट्री में चली जाएगी और अगली दफ़ा बिक जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जब आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे होते हैं सर्विसेज के लिए तो आप देखते हो कि जी सर्विस लो कॉन्टैक्ट सर्विस है या हाई कॉन्टैक्ट सर्विस है। अगर लो कॉन्टैक्ट सर्विस है तो आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हो एवरेज कैपेसिटी पर कि जी ओवर द ईयर आप देख लेते हो कि जी एवरेज क्या है और आप एवरेज की बेसिस पर कैपेसिटी प्लानिंग करते हो। अब अगर सर्विस की डिमांड उस एवरेज से ज़्यादा हो जाएगी उस केस में भी आप उस डिमांड को कैसे मीट करोगे, आप उन लोगों को बता दोगे। फॉर एग्जांपल आप बैंक में थे, आप कहते हैं कि जी हम डेली बेसिस पर 10 एप्लीकेशंस जो है वो रिसीव करते हैं या प्रोसेस करते हैं। अब दैट इज़ द एवरेज, राइट। अब किसी दिन आपके पास 15 एप्लीकेशन आ गई तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको एक्सेसिव 5 एप्लीकेशंस को नेक्स्ट डे पर चले जाओगे जहां पर शायद आपकी डिमांड जो है वो 10 के बजाय 5 हो। सो व्हेनेवर यू डूइंग कैपेसिटी प्लानिंग फॉर सर्विसेज, अगर लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज हैं तो आप एवरेज डिमांड पर, आप एवरेज सर्विस डिमांड पर आप कैपेसिटी प्लानिंग करते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर हाई कॉन्टैक्ट सर्विस है जहाँ पर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है तो उस केस पर आप जो कैपेसिटी प्लानिंग करते हो वो पीक डिमांड पर करते हो कि मैक्सिमम कस्टमर की डिमांड कितनी होगी उसकी बेस पर आप अपनी सर्विस की प्रोडक्शन को देखते हो और सर्विस के ऑपरेशंस को देखते हो कि ये ना हो कि जी सिंस कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, कस्टमर मुस्तकिल इन कॉन्टैक्ट रहेगा, सो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि कल को कोई मसला ना हो। तभी ये होता है कि जी जब आप बस सर्विसेज की बात करें तो बस सर्विसेज हर घंटे के बाद बस जारी होती है क्योंकि वो पीक डिमांड को देख रही होती है। हर घंटे के बाद बस जाने का मतलब है कस्टमर हो या ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन हम हर घंटे के बाद सर्विस को ऑफर करेंगे ताकि कस्टमर जो है वो खुश रहे और कस्टमर को हमसे कोई कंप्लेंट ना हो। सो जब भी आप कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे सर्विसेज के लिए तो आप ये देखेंगे कि वो लो कॉन्टैक्ट है या हाई कॉन्टैक्ट है और फिर एवरेज करेंगे लो कॉन्टैक्ट के लिए और पीक करेंगे हाई कॉन्टैक्ट के लिए। उसके बाद आप ऑपरेशन प्लानिंग करते हो लोकेशन के लिए। अगेन लोकेशन बहुत मैटर करती है, किस जगह पर आप अपनी फैक्ट्री लगाओगे, किस जगह पर आप अपने रॉ मटेरियल रिसीव करोगे, कैसे रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाओगे। अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स की लोकेशन प्लानिंग जो होती है वो करीब भी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और दूर भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन से। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं पड़ता। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सर्विसेज की लोकेशन प्लानिंग की बात करें तो अगर वो लो कॉन्टैक्ट सर्विस है तो बेशक जो सर्विस की लोकेशन है वो दूर हो, कोई मसला नहीं। बैंक जो होता है वो कस्टमर से कितना दूर होता है, आई लिव इन वन विसिनिटी, बैंक इज अनदर विसिनिटी, बहुत डिफरेंस है, बहुत डिस्टेंस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी हाई कॉन्टैक्ट सर्विस है तो वहाँ पर जो आपका लोकेशन प्लानिंग है वो कस्टमर के करीब होना चाहिए। जो जहाँ पर कस्टमर रहता है उसके करीब ही आपकी सर्विस अवेलेबल हो। सो जब भी आप लोकेशन प्लानिंग करेंगे तो गुड्स के केसेस में इतना मैटर नहीं करता, चाहे वो दूर हो चाहे वो करीब हो, इट वोंट रियली मैटर। आप अगर करीब होगी तो वेल एंड गुड, आपका टाइम कम लगेगा, अगर दूर होगी तब भी कोई इशू नहीं है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन मे बी यू आर सेविंग ऑन अदर एक्सपेंसेस। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज लोकेशन प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट थिंग इज योर लेआउट प्लानिंग, कि आप किस तरीके से अपनी डिफरेंट प्रोसेसेस को, किस तरीके से अपने डिफरेंट सिस्टम्स को ले आउट करते हो। बिकॉज लेआउट की बेसिस पर आप डिपेंड होंगे कौन सा स्टेप 1 होगा, कौन सा स्टेप 2 होगा, कौन सा स्टेप 3 होगा, कौन सा स्टेप 4 होगा ना। जब आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और गुड्स के रेफरेंस से लेआउट प्लानिंग की बात करते हैं तो whenever we are producing goods, there are 3 different types of facilities that are available to you. First are productive facilities, then you have non-productive facilities and then you have support facilities. Productive facilities वो facilities होती हैं जो कि directly goods की manufacturing में मदद करती हैं, या productive facilities वो facilities होती हैं जो कि जिनका direct impact होता है on the production of goods. So सारी facilities जो हैं, for example जो आपकी machinery है that is going to become a productive facility, या जो आपका dyeing है अगर आपकी textile factory that is going to become a production facility.
है. So सारी facilities which are directly involved with the production of a service or a good is called production facility. Next is a non-productive facility. Non-productive facilities वो facilities होती हैं जो कि goods की production में direct impact नहीं लाती हैं. So उनको आप non-productive facilities कहते हैं, जो कि production में directly इस्तेमाल नहीं होती. And then you have your support facilities. So support facilities are those facilities जो कि आपके प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं. सो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क है, वो आपका सपोर्ट फैसिलिटी हो गया. या जो आपके गार्ड हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो लोग सिक्योरिटी पर्सनल को हैंडल करते हैं, वो आपकी सपोर्ट फैसिलिटी हो गई. सो बेसिकली आपकी 3 डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ होती हैं इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट: प्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव एंड सपोर्ट फैसिलिटीज़. उसके बाद जब आप लेआउट प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं तो डिफरेंट लेआउट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है. ना वो लेआउट्स कौन से होते हैं? प्रोसेस, सेलुलर, प्रोडक्ट एंड देयर आर अदर्स जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हांस करते हैं. और अगेन आपके पास सर्विस लेआउट्स भी होते हैं. ना सर्विस लेआउट्स जनरली कैन फॉलो द सेम लेआउट्स एज अ प्रोडक्ट और अ मैन्युफैक्चरिंग लेआउट. सो बहुत दफ़ा डिस्टिंक्शन नहीं होती. एक सर्विस भी यही प्रोसेस, यही प्रोडक्ट लेआउट्स फॉलो कर रही होती है जो कि एक गुड फॉलो कर रही होती है. सो हम सिर्फ लेआउट्स पढ़ेंगे, उसको गुड्स भी यूज़ कर सकती हैं और उसको सर्विसेज भी यूज़ कर सकती हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्रोसेस लेआउट. इन अ प्रोसेस लेआउट facilities are placed with reference to के जी specialization क्या है, with reference to the function, with reference to the process that they would be performing. For example कि जो आपका raw material है वो यहाँ रिसीव हो रहा है, उसके बाद आपका एक एरिया है जो कि ड्रिलिंग में स्पेशलाइज करता है, एक एरिया है पेंटिंग में स्पेशलाइज करता है, फिर सॉइंग में स्पेशलाइज करता है, सैंडिंग में स्पेशलाइज करता है. सो देयर वेरियस डिपार्टमेंट्स जो कि वेरियस डिफरेंट कामों में या वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस में स्पेशलाइज करते हैं. प्रोडक्ट वाई और प्रोडक्ट एक्स या प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी जो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो एज एंड व्हेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएंगी जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल जो आपकी प्रोडक्ट वाई वो ड्रिल एरिया में जाएगी, फिर सॉ में जाएगी, फिर पेंट में जाएगी, फिर असेंबली एरिया में जाएगी, पैकेजिंग में जाएगी और शिपिंग में चली जाएगी. दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट वाइज गोइंग टू फॉलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट स्टेप्स. ऑन द अदर हैंड प्रोडक्ट एक्स जो है वो सॉ में जाएगी, फिर सैंडिंग में जाएगी, फिर पेंट एरिया में जाएगी, फिर पैकेजिंग में जाएगी, फिर शिपिंग में जाएगी. दैट मीन्स दैट प्रोडक्ट एक्स इज फॉलोइंग 1, 2, 3, 4, 5 डिफरेंट स्टेप्स. सो व्हाट हैपेंस इन अ प्रोसेस लेआउट इज जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस लेआउट को फॉलो कर रही होती हैं, what they're doing is that वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बेसिकली प्रोसेस वाइज डिवाइड कर देती हैं, फंक्शन वाइज डिवाइड कर देती हैं, स्पेशलाइजेशन वाइज डिवाइड कर लेती हैं. और फिर पूरी आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी स्पेशलाइजेशन वाइज डिवाइड हो जाती है. जिस प्रोडक्ट को जो प्रोसेसेस या जो स्पेशलाइजेशन या जो फंक्शंस यूज करने होते हैं वो प्रोडक्ट उन फंक्शंस को यूज करते हुए आपकी फिनिश गुड बन जाती है. एंड दैट इज वाई आपकी प्रोडक्ट वाई जो है वो 6 डिफरेंट प्रोसेसेस यूज कर रही है. ऑन द अदर हैंड आपकी प्रोडक्ट एक्स जो है वो 5 डिफरेंट प्रोसेसेस यूज कर रही है. सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोसेसेस, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस डिवाइड हो जाती है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस सिस्टम में एंटर होती हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट फंक्शंस को यूज करके उस सिस्टम से एग्जिट हो जाती हैं. सो दैट इज व्हाट अ प्रोसेस लेआउट इज. The second type of layout that we will study is called as a cellular layout. Cellular layout is basically जहाँ पर आपकी different products जो हैं उनकी आप cells बना देते हैं, उनके आप units बना देते हैं. जहाँ पर हमने process layout में बात की थी कि वहाँ पर आप specialization के लिहाज से different departments बन जाते हैं और एक product जो है वो different department से होती हुई निकल जाती है. Cellular layout में आप हर product के लिए एक separate, एक independent unit बना देते हैं, एक इंडिपेंडेंट सेल बना देते हैं, एक इंडिपेंडेंट कमरा बना देते हैं जहां पर प्रोडक्ट पूरी रोटेट होकर बन के जब उस यूनिट या उस सेल से निकलती है तो वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है इन टर्म्स ऑफ फिनिश गुड्स. मतलब कि अगर आप सेलुलर लेआउट के इस फिगर को देखें जो कि आपकी स्क्रीन में है, प्रोडक्ट एक्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन दिस सेल. दैट बेसिकली मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर सेल विल रिसीव रॉ मटेरियल एंड विद इन दिस सेल
cell, within this unit, everything will be done, and once this product get out of this cell, the product will be transformed into a finished good. Similarly, जो product Y है वो भी एक particular cell या एक particular unit में manufacture होती है, एक particular unit में produce होती है, और उस unit में ही रहते हुए, उस particular cell ही में रहते हुए वो transform होती है from raw material टू फिनिश गुड. जब वो इस यूनिट या इस सेल से निकलेगी तो वो सीधा शिपिंग एरिया में जाएगी और कस्टमर के पास पहुंच जाएगी. सिमिलरली जब प्रोडक्ट एक्स इस पर्टिकुलर सेल से निकलेगी तो सीधा वो शिपिंग एरिया में जाएगी और आपके कस्टमर के पास या आपके कंज्यूमर के पास वो चली जाएगी. सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज अ सेलुलर लेआउट, जहाँ पर आपकी प्रोसेस बेस्ड डिस्टिंक्शंस नहीं होती या फंक्शन बेस्ड डिस्टिंक्शंस नहीं होती. डिस्टिंक्शंस किस बेसिस पर होती हैं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट बन रही है. आप प्रोडक्ट वाइज अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो, आप प्रोडक्ट वाइज अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी के लेआउट को डिवाइड करते हो. एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर यूनिट में बन रही होगी और वहाँ पर कंप्लीट बन रही होगी. दूसरी प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली एक अलग यूनिट में बन रही होगी और अपने अलग प्रोसेसेस और अपने अलग फंक्शंस को यूज़ कर रही होगी. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ सेलुलर लेआउट. अगेन सेलुलर लेआउट और प्रोसेस लेआउट में आपको डिफरेंस ये लगेगा कि प्रोसेस लेआउट में एक सॉ एरिया, एक ड्रिल एरिया, एक पैकेजिंग एरिया था. सो देयर वाज नो डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड देयर वाज नो डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस. ऑन द अदर हैंड सेलुलर लेआउट में व्हाट यू वुड सी इज दैट देयर इज डुप्लीकेशन. पैकेज एरिया यहाँ पर भी है प्रोडक्ट एक्स के लिए, पैकेज एरिया यहाँ पर भी है प्रोडक्ट वाई के लिए. सॉ जो है वो प्रोडक्ट एक्स के लिए भी है, सॉ एरिया जो है वो प्रोडक्ट वाई के लिए भी है. ये क्यों है? ये इसलिए है बिकॉज जो इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स हैं वो उनके अपने उनको बनाने के लिए उनके अपने इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं. वहाँ इस सेलुलर लेआउट में प्रोसेसेस जो हैं वो शेयर नहीं होते जिस तरीके से आपके प्रोसेस लेआउट में शेयरिंग हो रही थी. उस तरीके की शेयरिंग आपके सेलुलर लेआउट में नहीं होती. इंडिपेंडेंटली एक प्रोडक्ट जो है अपनी यूनिट या अपने सेल में मैन्युफैक्चर होगी और दूसरी प्रोडक्ट अपने यूनिट और अपने सेल में मैन्युफैक्चर होगी. अगर डुप्लीकेशन ऑफ एरियाज, डुप्लीकेशन ऑफ प्रोसेसेस होती है तो नेवर माइंड, that's not an issue because cellular layout में आपकी duplication जो है वो हो सकती है. Next is a goods producing layout. It's basically an assembly line layout जहाँ पर एक assembly line होती है. आप पूरी प्रोडक्शन को जिस तरीके से गुड्स प्रोड्यूस होती हैं आप उस पूरे प्रोसेस को स्मॉल स्टेप्स में डाल देते हो, डिवाइड कर देते हो और उन स्मॉल स्टेप्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके स्ट्रीम लाइन कर देते हो अराउंड एन असेंबली लाइन. असेंबली लाइन क्या है? असेंबली लाइन इज दैट जो रबर की आपके होती हैं जहाँ पर रोलर्स के ऊपर आपकी चलते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये नेट जियो पर या नेशनल जियोग्राफिक पर कार मैन्युफैक्चरिंग देखी है, पीपल आर स्टैंडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन असेंबली लाइन. एन असेंबली लाइन इज दैट थिंग विच कीप्स ऑन मूविंग, जहाँ पर गाड़ी की बॉडी जो होती है वो असेंबली लाइन पर होती है और वो मूव करती जाती है. लोग राइट एंड लेफ्ट खड़े अपना काम करते जाते हैं. सो गुड प्रोड्यूसिंग लेआउट इज बेसिकली एन असेंबली लाइन लेआउट जहाँ पर आपका एक असेंबली लाइन पूरी बनी होती है जो कि आपकी गुड को, जब गुड यहाँ पर एंटर होती है और पूरी असेंबली लाइन के बाद जब यहाँ पर एग्जिट होगी तो वो वहाँ पर गुड जो है वो फुली कंप्लीटेड होगी, फुली प्रोड्यूस्ड होगी एंड इट वुड बी रेडी टू बी सोल्ड टू द कस्टमर. सो दिस इज कॉल्ड एज एन असेंबली लाइन लेआउट. नेक्स्ट आर योर अदर लेआउट डिज़ाइंस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी में. एक होता है यू शेप्ड प्रोडक्शन लाइन्स. यू शेप्ड प्रोडक्शन लाइन्स आर दिस, राइट, यू शेप्ड का फायदा क्या होता है? या यू शेप्ड प्रोडक्शन लाइन्स आप उन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत स्लो मूविंग होती हैं. होता क्या है कि उस यू के सेंटर में आपका इंडिविजुअल होता है. वो यहाँ से काम शुरू करता है, फिर वो आगे आता है, फिर वो यहाँ आता है, फिर आगे आता है और फिर एंड में ही वही काम करता है. सो यू शेप्ड लेआउट फैसिलिटीज़ में या यू शेप्ड प्रोडक्शन लाइन्स एक आप उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत स्लोली मूव करती हैं अपनी प्रोडक्शन लाइन में. और इन यू शेप्ड प्रोडक्शन लाइन्स आपके बहुत कम लोग होते हैं जो कि उस यू के अंदर मौजूद होते हैं और वो जो यू के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं
वो मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। वो स्टेप 1 में भी इन्वॉल्व होंगे, फिर वो स्टेप 5 में भी इन्वॉल्व होंगे, फिर वो स्टेप 8 में भी इन्वॉल्व होंगे। एंड दैट इज वाई इट इज मेड इन यू, बिकॉज जब आप यू के अंदर मौजूद होंगे तो एक इंडिविजुअल को तो बहुत आसान होगा कि वो यहाँ पर भी काम कर सकता है, यहाँ पर भी काम कर सकता है, यहाँ पर भी काम कर सकता है और यहाँ पर भी काम कर सकता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ यू शेप्ड प्रोडक्शन लाइन। एंड देन यू हैव फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग systems as well. Flexible manufacturing systems are basically those systems जहाँ पर आप अपने systems में flexibility ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जी कोई एक ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, आपने प्रोडक्ट एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो आपको सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा, आप मैन पावर ज़्यादा मंगवा लोगे, आप रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर लोगे, या आप एक और डिफरेंट काउंटर्स ज़्यादा खोल लोगे। सो दैट इज़ वेयर और दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जहाँ पर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को फिक्स्ड नहीं रखते कि भाई ऐसे ही चीज़ें होनी है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसके, अच्छा अगर स्टेप 1 में आपका सिर्फ पहले एक बंदा काम कर रहा था, एकदम से डिमांड ज़्यादा होगी तो आप स्टेप 1 को रिपीट करके, डुप्लीकेट करके वहाँ पर 4 बंदे लगा सकते हो, ताकि स्टेप 1 ज़्यादा जल्दी होगा तो स्टेप 2 और स्टेप 3 और स्टेप 4 भी ज़्यादा जल्दी होगा। सो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज़ बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जहाँ पर आप जो चीज़ें हैं वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बेस्ड ऑन द सिचुएशनल फैक्टर्स, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, आप अपनी चीज़ों को, अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हो। Now the very last thing that we would be doing in this particular chapter, which is chapter number 14, is कि जब आप production and operations management की बात करते हैं तो आप एक और बहुत important aspect की बात करते हैं, which is of quality. वाई क्वालिटी या क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्यों करते हैं? What's the purpose of producing goods and services? Purpose of producing goods and services is that through production of goods and services, through creating goods and services, what an organization is basically doing is an organization is creating value and creating benefits for the customer. अब ये जो value और benefits की हमने बात की, ये value और benefits customer को जब तक नहीं मिलेगा, जब तक customer के पास एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट नहीं आएगी। अगेन अगर हम कस्टमर राइट्स की बात करें तो कस्टमर की सिंगल राइट होती है, द कस्टमर हैज़ द राइट टू परचेज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कस्टमर के लिए क्या है? क्वालिटी। आप कस्टमर से कहें कि जी इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप इसको फ्री में ले रहे हैं, तो कस्टमर कहेगा नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं फ्री में भी नहीं लेता। सो कस्टमर के लिए, या कस्टमर को जब हम कहते हैं कि कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करना है या कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करनी, कस्टमर की नीड्स तभी सेटिस्फाई होंगी, कस्टमर को बेनिफिट्स तभी मिलेंगे, कस्टमर को वैल्यू तभी मिलेगी जब आपका कस्टमर जो है वो क्वालिटी रिसीव करेगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। सो क्वालिटी जो है वो कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Question: quality क्या है? Quality is basically a characteristic of a product or a service that bears on its ability to satisfy stated or implied needs. Quality क्या है कि एक प्रोडक्ट यानी एक गुड और एक सर्विस अपने अंदर कितनी एबिलिटी रखती है कि वो कस्टमर की स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। स्टेटेड नीड्स वो नीड्स होती हैं जो कि कस्टमर खुद मुंह से बोलता है, और इम्प्लाइड नीड्स वो नीड्स होती हैं जो कि कस्टमर मुंह से तो नहीं बोलता लेकिन एक्सपेक्ट ज़रूर करता है। सो क्वालिटी इज़ ओनली मेट, या जब हम कहते हैं क्वालिटी क्या है, क्वालिटी इज़ बेसिकली दोज कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक गुड या एक सर्विस में हो सकते हैं जो कि कस्टमर की इम्प्लाइड और स्टेटेड नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। सो लेट्स से दैट यू फॉर एग्जांपल यू गोइंग टू बाय अ शू, ठीक हो गया। अब शू का जो स्टेटेड नीड है शू पहनने की वो ये है कि जी नंगे पाँव तो नहीं फिर सकते ना, सो आप शू इसलिए खरीदते हैं ताकि आप जूता पहन सकें, आप अपने पाँव को सेव कर सकें। ऑन द अदर हैंड इम्प्लाइड नीड जब आप जूता खरीदते हैं ये होता है कि द शू शुड लुक गुड ऑन योर फीट, राइट। नाउ एक शू की क्वालिटी तभी अच्छी होगी जब वो कंफर्टेबल होगा और आपके पाँव को डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स से बचाएगा और आपके पाँव पर अच्छा लगेगा। नाउ जस्ट अज्यूम कि जी जूता बड़ा कंफर्टेबल है,
जूता जो है वो आपके पाँव को सेफ भी रखता है, लेकिन अगर जूता आपके पाँव पर अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट बी हैप्पी विद योर परचेज। यार पता नहीं जूता खरीद लिया, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट, डजंट लुक गुड ऑन माई फीट। यू विल नॉट बी हैप्पी विद योर प्रोडक्ट, यू विल नॉट बी हैप्पी विद द शूज दैट यू हैव बॉट। सो जब भी आप किसी गुड या सर्विस की बात करेंगे और विद रेफरेंस टू गुड्स या सर्विस आप क्वालिटी की बात करेंगे, इट इज़ बेसिकली विल बी के जी आपकी जो गुड या जो आपकी सर्विस है उसके अंदर ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपकी स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स को फुलफिल करते हैं। एंड अगेन quality becomes a very very important aspect of your production and operations management, because आपका पूरा प्रोसेस जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें वो एक सिंगल फोकस के साथ चलता है कि आपने क्वालिटी की प्रोडक्ट बनानी है। आगे क्वालिटी की बहुत टाइप्स होती हैं, आप क्वालिटी डिफरेंट तरीके से मेंटेन करते हो, वो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम चैप्टर नंबर 14 के लिए हम चैप्टर नंबर 14 को यहीं पर एंड करेंगे कि जब आप प्रोडक्शन ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करते हो, जब आप प्रोडक्शन प्रोसेसेस की बात करते हो, या जब आप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ की बात करते हो, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कस्टमर्स को एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट दे। अब आप मेरी स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स एंड कोर्स रिकैप। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 14 के साथ हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का कोर्स ख़त्म कर दिया। सो यू एंड आई हैव बीन टुगेदर फॉर 32 lectures नाउ, एंड बिफोर आई से अ वेरी गुड बाय टू यू एंड बिफोर आई बेग माई लीव फ्रॉम यू, लेट्स जस्ट हैव अ वेरी क्विक कोर्स रिकैप। हम लेक्चर रिकैप नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम कोर्स रिकैप कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इज़ अ वेरी सिंपल कोर्स, डरने की ज़रूरत नहीं, भागने की ज़रूरत नहीं। It's not a rocket science course, it's not maths, not statistics. The purpose of this particular course is just to give you a feeler of what business is about. कि कल को आपसे कोई पूछेगा भाई बिजनेस क्यों कर रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ क्यों कर रहे हो, बीबीए क्यों कर रहे हो, तो आप बता सको कि भाई मार्केटिंग मुझे पसंद है, अकाउंट्स मुझे पसंद है, फाइनेंस मुझे पसंद है, प्रोडक्शन मैनेजर मैं बनना चाहता हूँ। यू कैन टॉक इंटेलिजेंटली अबाउट इट। एंड द सेकेंड रीजन वाई यूर स्टडिंग ITB कोर्स इज दैट नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जो कि आप स्पेसिफिक या स्पेशलाइज कोर्सेज पढ़ेंगे, अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, मार्केटिंग के, मैनेजमेंट के, ये कोर्स आपकी बेसिस बनता है उनके लिए। सो that is the purpose of this course. इस particular course में हमने a total of 16 chapters पढ़े. So we've left 4 chapters from your book which I just feel के इतने ज़्यादा important नहीं है, जो कि आप आगे जाकर और पढ़ेंगे, but we've just done 16 chapters from your books. अब इन 16 chapters में हमने क्या पढ़ा, हमने शुरू बेसिकली किया बिजनेस की डेफिनेशंस है, बिजनेस क्या होता है, उसमें प्रॉफिट मोटिव क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, आप सोल प्रोप्राइटर पर जा सकते हैं, आप पार्टनरशिप पर जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेशंस पर जा सकते हैं। फिर हमने इन सब की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। देन वी वेंट ऑन टू स्टे कि अच्छा जब एक बिजनेस होता है उसकी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स भी होती हैं, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में काम करता है, उसकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, उसकी सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, उसकी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उसकी कंपेटिटिव इन्वायरमेंट। हर बिजनेस को अपने इन्वायरमेंट को देखना पड़ता है और अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने बिजनेस को कस्टमाइज करना पड़ता है। देन वी सेड कि जब हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिक्स होती है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें हमने डिमांड की बात की, उसमें हमने सप्लाई की बात की, डिमांड कर्व की बात की, सप्लाई कर्व की बात की। वी टॉक्ड अबाउट वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद यू। वी टॉक्ड ऑफ के जी आपका GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, या हमने उन सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की आपके साथ बात की, आपके साथ डिस्कस किया, जो कि आपके बिजनेस में या आपके सक्सेसफुल बिजनेस रनिंग में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। उसमें हमने एक्सचेंज रेट की बात की, हमने परचेजिंग पावर की बात की, हमने इन्फ्लेशन रेट की बात की, हमने हाइपर इन्फ्लेशन की बात की, और मल्टीपल टाइप के असॉर्टेड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हमें डिस्कस किए। उसके बाद हम आ गए मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन पर, जहाँ पर हमने मैनेजमेंट की बात की कि जी मैनेजमेंट क्या होती है, और एक जब हम मैनेजमेंट की बात करें तो उसके 4 डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं। हमने प्लानिंग की बात की, हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, हमने गोल्स की बात की, हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात की, हमने बात की कि जी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, हमने स्ट्रैटेजीज़ की बात की, हमने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स की बात की, जैसे हमने कंटिजेंसी प्लान की भी बात की थी, और
प्रैक्टिकल प्लान्स की भी बात की थी कि आप कैसे प्लानिंग करते हैं। फिर हमने कहा कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, पैसा भी होता है, लोग भी होते हैं, रॉ मटेरियल भी होता है, उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसमें वो सारा ऑर्गेनाइजिंग में था, जहाँ पर हमने सिलेक्शन की, रिक्रूटमेंट की, अप्रेजल्स की, कंपनसेशन की, बेनिफिट्स की हमने बात की। देन वी सेड कि आप लीडर भी बनते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप के लीडर्स की बात की कि ऑटोक्रेटिक होते हैं, डेमोक्रेटिक होते हैं, फ्री रेन होते हैं, सिचुएशनल होते हैं। फिर एक लीडर मोटिवेट भी करता है। फिर हमने मोटिवेशनल थ्योरीज की बात की कि जी मैस्लो की थ्योरी है, फिर 2 फैक्टर थ्योरी है, फिर थ्योरी एक्स है, फिर थ्योरी वाई है, कौन सी थ्योरी कैसी है, किसके क्या प्रोज है, किसके क्या कॉन्स है, और मैनेजर के लिए इन थ्योरीज की क्या इम्प्लीकेशन है, हमने ये भी पढ़ा। जब हमने मैनेजमेंट ख़त्म कर ली, फिर हम मार्केटिंग पर जंप हमने की कि जी ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई, ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एनवायरनमेंट भी देख ली, इकोनॉमिक्स भी देख ली, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को मैनेज भी कर लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट बनाएगी। प्रोडक्ट बनाने के रेफरेंस हमने कहा कि जी जब भी आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आप सबसे पहले अपनी मार्केट को स्टडी करेंगे, आप अपनी मार्केट का नीड एनालिसिस करेंगे, कस्टमर को जानेंगे, कस्टमर को पहचानेंगे, टारगेट मार्केट डिफाइन करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पता करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करेंगे, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस की बात करेंगे। देन वी सेड कि आप फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब प्रोड्यूस कर लिया तो उसको प्राइसिंग कैसे करेंगे, कंपैरेटिव प्राइसिंग की हमने आपसे बात की, हमने आपसे ब्रेक इवन एनालिसिस की हमने आपसे बात की। फिर हमने कहा अच्छा फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जब प्रोडक्ट बन भी गए, प्राइस भी होगी। फिर हमने आपसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, जिसमें हमने आपसे इंटरमीडियरीज को डिस्कस किया। फिर हमने कहा अच्छा डिस्ट्रीब्यूट भी होगी तो प्रमोट करना है। फिर हमने प्रमोशनल मिक्स की बात की, आपसे डिफरेंट के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, और आपके मैगजीन्स होते हैं, और आपके अखबार होते हैं, और आपकी डायरेक्ट मेल होती है, और आपके इंटरनेट होता है, वेरियस मीन्स, और हर मीडियम को या प्रमोशनल मिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की। जब हमने अपने मार्केटिंग का एस्पेक्ट ख़त्म किया तो हम गए अकाउंटिंग पर, जहाँ पर हमने अकाउंटिंग डिफाइन की। हमने आपसे डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया और कहा कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या पर्पस सर्व करती है। फिर हमने आपसे बात की फाइनेंस की, कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म यूजेस क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, सिमिलरली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होती हैं। और फाइनली आज के लेक्चर में हमने आपसे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात की कि ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, आप प्रोडक्शन प्लानिंग जब करते हो तो किन किन चीज़ों के बारे में करते हो, कैपेसिटी के बारे में करते हो, लोकेशन के बारे में करते हो, लेआउट के बारे में करते हो। और फिर हमने अपना चैप्टर और अपना कोर्स जो है वो क्वालिटी के साथ ख़त्म किया। So that basically ends our course for Introduction to Business, and that basically ends हमारा जो पूरा कोर्स है वो that basically consists of all these things. Now before I say my final goodbyes to you, and before I say my Allah Hafiz finally to you, I must say that it was a pleasure teaching you, and I hope कि I've given it my best shot कि हम आपको अच्छे से सारे concepts समझा सकें। लेकिन again, as I said in my very first lecture as well, that for you to understand these concepts, it is very very important for you to understand these concepts. But then again, just don't see my lectures as the final thing in your understanding of the book or in your understanding of the course. You need to complement my lectures with the book that you have. So please आप book और lectures को in combination लेकर चलें. And here's hoping that you're going to have a very successful life, and here's hoping that you will achieve every objective, every goal that you've set for yourself, and here's wishing you all the good luck in your future endeavors. And that's about it from myself, and that is about it from my course of Introduction to Business. Allah Hafiz.